Hello students, here is a lesson number 5, health and hygiene. After completing this chapter you will be able to learn know components of food and balanced diet, prescribe communicable and non-communicable diseases, understand the importance of exercise, hygiene, rest and posture, how to prevent communicable diseases. मीन्स आपको communicable disease है उससे आप कैसे prevent कर सकते हो, आपकी immunity power कैसे body की improve कर सकते हो. Now health is a state of complete physical and mental well-being. A healthy person is one whose body and mind are completely fit. Health जो है हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग मीन्स आपका फिजिकली भी कंप्लीट है, आपकी बॉडी फिट है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, मेंटली भी आप फिट एंड फाइन हो. अ हेल्दी पर्सन इज वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कम्प्लीटली फिट मीन्स बॉडी भी फिट है, कम्प्लीटली फिट है और माइंड भी आपका कम्प्लीटली फिट है. दैट इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन. टू स्टे हेल्दी वी शुड means we have if we have to live stay healthy, if we have to be in a healthy way, so have a balanced diet, exercise regularly, take adequate rest and sleep, protect ourselves from diseases, maintain hygiene. मीन्स आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड लेना है. मीन्स प्रॉपर उसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, आपका रफेज आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स. So these are food that have proper nutrition is called a balanced diet, which roughage and water. Now exercise regularly. You have to do exercise regularly. You have to do yoga regularly. Take a adequate rest and sleep. Take the proper timing of rest and sleep. That we have to take a rest for 30 minutes in a day in evening time, or if we have to take a rest, if we have to take a sleep, minimum 6 to 7 hours and 8 to 9 hours is okay. To protect ourselves from diseases, we have to protect ourselves from diseases. How can we protect ourselves from diseases? To take a complete balanced diet, to regularly have to take some intakes of fruits, vegetables, green leafy vegetables that so have many nutrients and irons. Maintain hygiene. You have to maintain your hygiene. Now let us first know about the various components of food. So how many of you know that we have various components of food? In how many of you know that we have in nutrients we have carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, and it also contains roughage and water. So today we are going to learn about the health and hygiene, and this is your topic, components of food. We eat different types of food which gives us energy to work and play, to grow and make your body strong and healthy. We eat different types of food. We have so many types of foods like roti, chapati, sabzi, dal, chawal. Then we have salads, green salads. We have fruits. We have idli, sambar, dosa. So many. We have the varieties of food to grow and make our body strong and healthy. Food contains some essential substances called nutrients. The food that contains the main important thing, substance, that is called nutrients, which are required for our growth, and these nutrients are required for our growth, maintenance and repair of our body. Our food contains 5 main nutrients. So our food contains 5 main nutrients, that are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. It also contains roughage and water. Roughage means that portion of vegetables or fruits which going to excrete are the wastage of our food. And water. Our body needs all these components in right amount to remain healthy. So carbohydrates. The next is carbohydrates, and carbohydrates gives a lot of energy to work and play. Sugar and starch are two main types of carbohydrates. We have in carbohydrates the two main types of sugar and starch. Cereals. Carbohydrates is present in cereals, rice, wheat, fruits, corn, potato and honey are some sources of carbohydrates. So we have cereals, rice, wheat, fruits, corn, potato and honey are some sources of carbohydrates. For doing a lot of physical work, we need carbohydrates because it gives us energy for various activities.
cereals, rice, wheat, fruits, corn, potato and honey. These are the examples of carbohydrates, are the main sources of carbohydrates for doing lots of physical work. If we doing lots of physical work, we are going to work, we are going to play, we are going to exercise. We need more carbohydrates to maintain our body fit and healthy. It gives us energy for various activities. So carbohydrates gives us energy. Thus carbohydrates rich food is called energy giving food. मीन्स कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी और वो जो एनर्जी फूड है हमारे लिए, जैसे कि ब्रेड है, पटेटोज है, टोमेटोज है, एंड दीज आर द लेंटिल्स एंड ग्रेन्स. इट कंटेन्स मैनी कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये हमें एनर्जी देता है और दिस इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. नाउ फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. इन फैक्ट फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स जो है हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से. वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, मीट, एग, yolk, cheese, cream and dry fruits are some sources of fats. So these are the sources of fats like vegetable oil, milk, butter, ghee, meat, egg yolk, cheese, cream and dry fruits are some sources of fats. Eating too much fat can be harmful. Excess eating of fatty foods can make us obese. मीन्स अगर हम ज़्यादा फैटी फूड खा लेते हैं तो हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है. मीन्स जो मोटापा होता है हमारी बॉडी में, वो फैट्स जो है वो बढ़ जाता है. ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा. ओबेसिटी से हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, मीन्स जो हार्ट अटैक्स आते हैं. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी विच एक्स्ट्रा फैट जो है हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो हमारी बॉडी में ओबेसिटी प्रोड्यूस करता है. अगर ज़्यादा फैट से हम फैट्स गिविंग फूड खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को अनहेल्दी बना देंगे. सो विच कैन बी यूज लेटर व्हेन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. अगर हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फैट का फूड हम खा रहे हैं, अगर हम इनटेक कर रहे हैं, सो फैट्स ऑल्सो गिव्स एनर्जी. दस आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स एंड दिस फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स. फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड हीट टू आवर बॉडी. फैट जो है हमारी बॉडी में हीट भी प्रोवाइड करता है. हीट हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म. और हीट जो है, ये जो हीट प्रोवाइड करता है फैट जो हमारी बॉडी को, और ये हमारी बॉडी में हीट मेंटेन करता है. नाउ प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग worn out tissues. Proteins are called body building foods. Milk and its products, chicken, fish, eggs, pulses and soya bean are rich in proteins. Growing children like you need more proteins. Proteins जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. We need proteins for building of muscles. We need proteins for building of muscles and repairing of tissues. मीन्स प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में और हमारे मसल्स जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं, उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है. नाउ प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है. मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स है जैसे कि चीज़, बटर, घी, बटर मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पनीर. नाउ चिकन, फिश, एग्स, पल्सेस, सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन्स. ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स. और ग्रोइंग चिल्ड्रन है जैसे आप लोग हो, आपको प्रोटीन्स फूड्स की ज़्यादा ज़रूरत है जो रिच इन प्रोटीन्स हो. जैसे कि आप एग्स खाओ, मीट खाओ, पनीर खाओ, मिल्क खाओ. जैसे कि नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं. जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन फूड्स खाएं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी नॉन वेजिटेरियन फूड यूज़ करो. सो इन वेजिटेरियन वी हैव लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ इन प्रोटीन्स ऑल्सो. We have vitamins. The next is vitamins. Vitamins keeps us fit, improve appetite and increase our ability to fight disease. विटामिन्स जो है वो आपकी बॉडी को फिट रखता है, आपका एपेटाइट इम्प्रूव करता है, उसे इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी की एबिलिटी जो है, जो फाइट से डिजीज़ करती है, आपका इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव करता है. फ्रूट्स, एग्स, फिशेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. जैसे कि फ्रूट्स हैं हमारे पास, फिशेस हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये सारे जो सोर्सेस है वो विटामिन्स के. ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, बट लैक ऑफ एनी विटामिन इन आवर बॉडी कॉज डिजीजेस. जैसे कि लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन है हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड, बट हम ज़्यादा, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा नीड्स है विटामिन की,
तो हमें डिजीजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। सो हैव लॉट ऑफ विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. So these are foods rich in vitamins and minerals. Now what is minerals? Minerals keep our body healthy. मिनरल जो है हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. दे आर स्ट्रेंथन द बोन्स. वह हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मसल्स को इंक्रीज करता है एंड मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. और ये सारे मिनरल्स के मीन सब्सटेंसेस है लाइक आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है इन सारे सब्सटेंसेस की. सो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी. और मिनरल्स जो है हमें स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है. बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, सॉल्ट एंड रिच इन सोर्स ऑफ मिनरल्स. और जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है, सॉल्ट है, ये सारे सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं. ना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हेल्प इन मेकिंग आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. और कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. और आयरन जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेट करता है, मीन्स ब्लड बनाता है हमारी बॉडी में. लैक ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी में कॉजेज डिजीज. और मिनरल्स में अगर हमें लैक होता है, मीन्स अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी है तो उससे हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कॉजेज अनीमिया. अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो हमें अनीमिया हो सकता है. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो हमें गोइटर हो सकता है. ना मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. जैसे कि मिनरल्स और विटामिन्स फूड जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. बिकॉज दिस प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. और यही सारे फूड मटेरियल्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग diseases से. Now roughage and water. Along with this 5 nutrients our body also needs adequate amount of roughage and water. Roughage are the fibers present in our food. roughage वो है जो फाइबर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, फूड में. They help us get rid of undigested food. और हमारा जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हमें मीन्स स्टोर करके ना रखिए और उससे थ्रू आउट करें हमारे बॉडी से. Some sources of roughage and green vegetables and fruits. सम मीन्स सोर्सेस है हमारे पास रफेज और ग्रीन रफेज के, दैट आर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. वाटर जो है हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो 2/3 हमारी बॉडी में उसका लेवल मेंटेन है. आवर बॉडी रिलीजेज वाटर एज स्वेट एंड यूरिन. और हमारी बॉडी में से जो वाटर रिलीज होता है वो स्वेट और यूरिन के थ्रू होता है. दस वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. और इसी वजह से हमें सबसे ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए. वाटर हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन. वाटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. वी शुड ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए. स्प्राउटेड ग्रेन्स, हमें ग्रेन्स खाने चाहिए. वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. वी शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए. हमें स्प्राउटेड ग्रेन्स खाने चाहिए. हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए जो हमारे डाइजेशन सिस्टम का जो लेवल है वो मेंटेन कर सके. नाउ डू यू नो वी शुड यूज़ द वाटर लेफ्ट आफ्टर बॉइलिंग. आप जानते हो कि जो हम ग्रेन्स है, ग्राम्स है, इन सब को जो बॉईल करने के बाद या कुकिंग के बाद जो वाटर जो बचता है एक्सेट्रा इन कुकिंग एज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. और उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है. तो आप उसे भी किसी और फूड आइटम में आप उसका वाटर जो है आप यूज़ करें क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. तो आप ऐसे न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट ना जाने दें. नाउ बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. बैलेंस डाइट जो है एक प्रॉपर डाइट है जिसमें राइट कंटेंट ऑफ हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट अमाउंट में हमें रफेज और वाटर चाहिए जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में, फंक्शनिंग करने में, वर्क करने में हेल्प करती है. फॉर कन्वीनियंस एंड हेल्दी ईटिंग द फूड्स ऑफ बैलेंस डाइट आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स.
कन्वीनियंस के लिए हमारी बॉडी को जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है बैलेंस डाइट को. दीज आर सेरेल ग्रुप. नाउ व्हाट इज सेरेल ग्रुप? दिस ग्रुप कंटेन्स फूड लाइक राइस, चपाती एंड ब्रेड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स. सेरेल ग्रुप में आपको चपाती है, ब्रेड है और जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब जो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है एंड मिनरल्स है. नाउ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप्स में आपको मिलेगा इट कंटेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर रिच इन मिनरल्स. ऐसे फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हो, विटामिन हो, रफेज हो, फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो. मिल्क ग्रुप. इट कंटेन्स मिल्क, चीज़ एंड कर्ड विच आर रिच इन प्रोटीन्स. और इसमें आपको जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क होगा, मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे लाइक चीज़ है, कर्ड है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन्स और फैट्स और मिनरल्स तीनों न्यूट्रिएंट्स जो है आपको अवेलेबल होगा. नाउ प्रोटीन ग्रुप. प्रोटीन ग्रुप्स इट कंटेन्स फूड लाइक मीट, फिश, एग्स, बीन्स, नट्स एंड पीस. प्रोटीन्स फूड में हमें फूड है हमारे पास मीट है, फिश है, एग्स है, बीन्स, नट्स एंड पीस विच आर रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स. और ये जो है वो प्रोटीन्स और फैट्स में रिच हैं. Now we should eat lots of fruits and vegetables and lesser amount of fatty foods. हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए फैटी फूड से ज़्यादा. ऑलवेज रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे. और ये जितने भी ये जो 4 फूड ग्रुप्स है इसमें से आपको फूड मटेरियल्स जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए. जैसे कि आपको डेली चपाती, ब्रेड खाओ, आप राइस खाओ, लेंटिल्स खाओ. नाउ वेजिटेबल्स में आपको फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारे आप यूज़ करो. रफेज है. मिल्क ग्रुप में आपको जैसे चीज़ है, कर्ड है, मिल्क है, ये आप डेली यूज़ करो. प्रोटीन ग्रुप में आपको मीट है, फिश है, बीन्स है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पीज़ हैं, ये सारे आप प्रोटीन ग्रुप के फूड प्रोडक्ट्स भी आप डेली इनटेक लो. नाउ प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. Only eating right amount of all food is not enough of our health. मीन्स सिर्फ राइट अमाउंट फूड का वो भी हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं है. वी शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, कुकड एंड स्टोर्ड सो दैट इज न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट. हमें प्रॉपरली उसे वॉश करना चाहिए, प्रॉपरली उसे कुक करना चाहिए, प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन है उसमें से लॉस्ट ना हो. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईटन रॉ शुड बी वॉश प्रॉपरली टू मेक दैम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल्स. जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसे हमें रॉ मीन्स जो वेजिटेबल्स हैं उसे हमें रॉ खाना चाहिए. रॉ शुड बी वॉश प्रॉपरली. अगर हम उसे रॉ खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, तो वो भी अच्छे से धो के टू मेक दैम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल्स, और वो डस्ट और केमिकल्स उसमें से रिमूव करना है. फूड शुड बी कुक्ड विथ केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. और फूड हमें उस तरीके से ओवर कुक नहीं करना है. ओवर कुक करने से आपके फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द फूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि मैंने अभी ये पहले आपको बताया कि ओवर कुक करेंगे फूड को तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे. नाउ रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स. रॉ फूड है और कुक फूड है, अगर आप कच्चे खाने को भी आप स्टोर कर रहे हो या पके हुए खाने को भी आप स्टोर कर रहे हो तो उसे प्रॉपरली स्टोर करें, अदरवाइज जर्म्स की वजह से वो स्पॉइल्ड हो जाएंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा तो आप उसे खा नहीं पाओगे. नाउ फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स फॉर फ्यू डेज, इन डीप फ्रीजर फॉर सेवरल वीक्स. अगर आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करोगे तो वो कुछ ही डेज के लिए आप स्टोर कर पाओगे, बट डीप फ्रीजर में अगर आप उसे स्टोर करोगे तो सेवरल ऑफ वीक्स, आप कुछ हफ्ते तक भी आप उस फूड को यूज़ कर सकते हो. Other methods of preservation of food are dehydration. So dehydration, canning, salting, sweetening, pickling and adding preservation. Means dehydration भी है हमारे पास methods में, canning भी है, salting भी है. अब जैसे टैमरिन है हमारे पास, मैंगो है, रॉ मैंगो है, उसे हम सॉल्ट यूज़ करके उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करके अगर आप उसे ऐसे करोगे तो वो प्रिजर्व रहेगा काफ़ी टाइम तक. कैन की जो बॉटल आती है उसमें अगर जो थोड़ी वेट चीज़ है, जैसे कि उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो आप उसमें से थोड़ा सा वाटर आप उसको निकाल लो, उसमें से रिमूव कर लो, फिर जो पल्प मटेरियल बच जाता है आप उसे आप डीप फ्रीज़र में रखो. देन स्वीटनिंग, अगर किसी चीज़ में अगर आपने शुगर ऐड कर दिया, जैसे कि जैम है हमारे पास, सॉस में भी हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा फूड आइटम जो है वो स्टोर रहता है ना. पिकलिंग,
अचार हम काफ़ी टाइम तक उसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें दूसरे प्रिजर्वेटिव, दूसरे स्पाइसेस भी हम ऐड करके फूड को स्टोर कर सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज मेथड to protect our food. In the next session we are going to take our next page number 210. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.